in today's video I will try to show you that how do I clean my bike, and I will also try to explain you some points. By using, you will be able to save the original color of your bike. Like many of my friends have their bikes and their original color is faded, like their black has went to gray and all, and their stickers are also trying to come out. So I will try to explain you some points through which you will not be able to get rid of the color of the bike and you will be able to save it. So as you can see the condition of the bike right now, as it is rainy outside, so the dust is just appeared on the lower part of the bike. And first of all, what we will do is to get rid of these dust particles which are attached to it, because if we will not remove the dust part, then it will stick to the paint of the color, and when we will rub our bike with shampoo or any liquid wash you will have, it will take away the original color of it. So here I am just using a wet cloth, a normal cloth, and for preference you can also use some brush, but be sure to not use the brush on the painted areas because it will take away the dust very fastly. So all I'm just doing is taking out the extra dirt which is already there on it, and just taking out the dirt from here, from this cloth. And we will be very light, because if we will be harsh on it, it will affect the paint of the bike. And always try to use two type of clothes, not only one for both washing and for cleaning. Use separately one for taking away the dirt and the dry things out of your bike, and one for the wet purpose, as if both will be mixed then the paint of the bike may damaged. So here I have kept my bike on double stand, as my water supply is right here, and now I will directly spray the water over the bike so that it gets wet and all the dirt attached to it gets damped, means it gets loose, so that it will be easy for me to clean all those dirt through the cloth. So here basically what I will do now is just sprinkle water over my bike so that all the dust particles become very loose, and it would be easy to take their bike to some shops and make their bike clean by giving 100-200 rupees to them. So it's just waste all they. And why it is bad? It is not bad that they are saving their times and all, but what bad is they use the water supply which is very rough for the bike, very rough. They sprinkle water at a very tremendous speed to the bike, and directly, as you can see, what I am doing is just sprinkling the water, and they are very harsh to the bike. And it's your bike, you should clean it by your own. कि कहीं कुछ गलत ना बोल दूँ मैं, कहीं कुछ ऐसा ना बोल दूँ जो गलत हो, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे सॉरी, क्योंकि मेरी ये एकदम फर्स्ट टाइम है कि मैं सीधे सीधे इस पर बात करते करते वीडियो बना रहा हूँ. एंड यू रियली इट्स नॉट ईजी फॉर मी, बिकॉज बहुत लोग ये वीडियो देखने वाले हैं, एंड मैं नहीं चाहता कि कुछ भी गलत उन्हें पता चले. तो बस मेरी जो हेजिटेशन वाली वॉइस है उसके लिए सॉरी, और बीच बीच में कभी कभी लड़खड़ा जा रहा हूँ कुछ बोलने में, तो उसके लिए एब्सोल्युटली सॉरी. होप आप लोग समझोगे. बहुत कम पानी यूज़ किया और सारी की सारी डस्ट हट चुकी थी गाड़ी से, क्योंकि वही जो हैवी डर्ट होती है उसी को निकालने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है. तो उसे मैंने ऑलमोस्ट निकाल दिया था क्लोथ से ही, तो अब मेरे लिए बहुत इजी हो गया. सिर्फ मैंने वाटर बस डाला और ऑलमोस्ट बाइक क्लीन हो चुकी है. अब नेक्स्ट स्टेप इज शैम्पूइंग योर बाइक, और अच्छे से एक फोम वॉश देना है अपने बाइक को, एक एक जगह पे, एक एक पार्ट पे जो जो डर्टी है, ताकि सारी की सारी जितनी भी थोड़ी बची हुई डर्ट है वो सारी की सारी निकल पाए. और कभी भी अपने बाइक को जस्ट वाटर करके छोड़ नहीं देना चाहिए कि मतलब मैंने पानी डाल दिया गाड़ी मेरी साफ़ हो गई, क्योंकि आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे ये सब आपको दूर से लगेगा क्लीन है, लेकिन ये क्लीन बिल्कुल नहीं होती है. वेट लेट मी फोकस. हाँ, ये क्लीन बिल्कुल नहीं होती है, डस्ट वहाँ रहती है, और यही डस्ट बाद में जम के बाइक के कलर को करोड करने लगती है. तो ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट शैम्पू इट. गाइस, हियर यू कैन सी दैट आई हैव अप्लाइड शैम्पू टू ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द बाइक. And never ignore these parts, like those shiny ones or very small parts. अब ट्राई करो कि जहाँ तक आपकी हाथ जा पाए, थोड़ी मेहनत करो. आप ही की बाइक है, आप ही को क्लीन रखना उसको. ऑलमोस्ट हर पार्ट तक आप रीच कर पाओ बाइक के, ठीक है. लाइक दोज डाउन पार्ट्स एंड ऑल, आपको हर पार्ट को रीच करना है, ठीक है. तो जब आप शैम्पू कर दोगे तो इसको कुछ देर के लिए छोड़ दो.
छोड़ने से क्या होगा कि जितनी भी डर्ट होगी, जितनी भी सब होगी, सारी की सारी मॉइस्चराइज हो जाएगी शैम्पू के अंदर, और हम लोग के लिए बहुत ईजी रहेगा। फिर बाइक की वाइब्रेशन में क्या करें। तो एज़ यू नो बारिश का मौसम है और रोड बहुत ज़्यादा टूटी फूटी हो जाती हैं, तो और बाइक मोस्टली बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन देने लगती है, 220 स्पेशली आगे से और इस तरफ से, यहाँ से और आगे की तरफ से। तो दोनों का सोल्यूशन हम लोग के पास। तो सबसे पहला, अगर आगे का आपका ये फेयरिंग वाइब्रेट करता है, जो कि एक प्लास्टिक पार्ट है और इस टैंक से खा खा के बार बार वाइब्रेट करता है, तो यहाँ पे मेरे पास इसमें एक सॉल्यूशन है। मैं यहाँ पे एक छोटे से किसी भी रबड़ के पीस का या डबल साइडेड टेप होता है, आप उसको काट के यहाँ पे लगा सकते हैं। मतलब इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू जस्ट सेपरेट देम। इसको थोड़ा सा अलग करके यहाँ पे आप डबल साइडेड टेप लगा सकते हो। मेरी तो बाइक में खैर वाइब्रेशन है नहीं ज़्यादा, क्योंकि अभी सर्विसिंग से आई थी। और डबल साइडेड टेप आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी अप्लाइड है। तो जो पार्ट में आपको लगे कि एक दूसरे से टकरा के आवाज़ आ रही है, वहाँ पे आप डबल साइडेड टेप यूज़ कर सकते हो। और सेकंड रही यहाँ की वाइब्रेशन, ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है, ये मेरे में भी है, आप सुन सकते होंगे। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए पहले गाड़ी को धो लेता हूँ मैं, और जब मैं अपनी बाइक को खोलूँगा तब इसकी मैं सॉल्यूशन बताऊँगा, और मैं करके भी दिखाऊँगा, क्योंकि मुझे अपने में भी करनी है। तो अब ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स हो चुकी है बाइक को ऐसे छोड़े हुए। तो अब हमें बाइक को क्लीन कर लेना चाहिए, वो भी वाटर से। Wipe it down, 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 अब हम इसे थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि इसकी जितनी भी वाटर है, वाटर सारी हट जाए, क्योंकि पॉलिश आप ड्राई स्टेट में ही कर पाइएगा। और ट्राई करिए कि जितना भी वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ प्रेजेंट है, होप आप देख पा रहे हो, जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ प्रेजेंट है, हमें सारे के सारे एक ड्राई क्लॉथ से सारे क्लीन करना है, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स अगर रह जाए तो वो स्टेन छोड़ जाएंगे। तो वी हैव जस्ट कम्प्लीटली क्लीन इट आउट विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। ड्राई कर दिया मैंने इसे। और पॉलिश से पहले हम चेकआउट कर लेते हैं, मैंने जो कहा था वाइब्रेशन पार्ट, रियर लाइट के तरफ वाली जो ये वाली पार्ट होती है, इसमें बहुत वाइब्रेशन होती है। तो इसे कैसे हम लोग सॉल्व करें, तो ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट टेक समथिंग लाइक दिस। ये मैंने एक कॉपी के स्टार्टिंग में जो वुडन टाइप थिंग होता है, ये वो है। इसे बस आप रोल करो और ट्राई टू जस्ट पुट इट एज डीप एज यू कैन। मतलब जितना डीप करोगे, जितना अंदर रखोगे, उतना फ़ायदा होगा। नाउ यू कैन सी वाइब्रेशन इज़ ऑलमोस्ट गॉन। ये जो पार्ट हिलती है इसी के कारण होता है, तो यहाँ पे आप ये लगा दो तो वाइब्रेशन अब नहीं होगी ज़्यादा। और अब क्वेश्चन आएगा पॉलिश कौन सी, तो आप कोई सा भी प्रेफर कर सकते हो, बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन कभी भी वो 150-200 वाली, 100 and 200 वाली जो एक बॉटल आती है उसे मत यूज़ करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिन होती है और ऑलमोस्ट उसमें कुछ नहीं होता है, मतलब कुछ रिज़ल्ट नहीं मिलती उसे। मैंने ट्राई करके देखा है, कोई रिज़ल्ट उससे नहीं मिलती है। और अगर आपको चाहिए तो मैं जो यूज़ करता हूँ पर्सनली, वो कुछ इस तरह का है, ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ की मिल जाती है यहाँ पे। और आपको स्टोर करने में कोई दिक्कत नहीं है, एक पैकेट आप 2 बार यूज़ कर सकते हो और वापस रख सकते हो, बहुत इजी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो इसे। और मुझे इसकी इफ़ेक्ट दिखी है, मतलब सच्चाई में दिखी है कि हाँ कुछ हुआ है इससे। सो आफ्टर टीयरिंग इट, ये कुछ ऐसा है स्पंज टाइप। इसे हम हाथ में ले लेंगे, यूँ पैकेट को हम रख लेते हैं, क्योंकि इसी में हम लोग इसको वापस स्टोर भी कर देंगे बाद में। अब जितने भी मेन पार्ट्स हैं, मतलब जितने भी प्लास्टिक पार्ट्स हैं, सब जगह आपको ऐसे अप्लाई कर देना। आप देख सकते हैं यहाँ पे इवनली चीज़ स्प्रे हो गई है पॉलिश अच्छे से। आप थोड़े थोड़े स्पॉट्स हर जगह, हर स्टिकर्स पे लगा सकते हो, जितने जगह भी आपको चाहिए। लाइक दिस बार्स यहाँ लगा सकते हो, फिर आप इन पार्ट्स में लगा सकते हो। जितने भी फाइबर पार्ट्स हैं, मेटालिक पार्ट्स हैं, आप हर जगह इन्हें अप्लाई कर सकते हो। जो भी चाहते हो आपकी शाइन करें ऑल, आप इन पोर्शंस पे लगा सकते हो। यू कैन गो ऑन योर एग्जॉस्ट टू, जितने डाउन पार्ट्स आप वहाँ लगा सकते हो, इन जगहों पे लगा सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें शाइन करनी चाहिए। आप इसे कोई सा भी क्लीन क्लॉथ लो और जहाँ जहाँ आपने पॉलिश अप्लाई किया है उसे इवनली मिक्स कर दो उसके जगह पे। Guys, you can see we have finally completed all the parts, washing, cleaning and polishing, and you can see the shine after the polish. You can see the reflection of mine, and
पॉलिश एक डर्ट लेयर को प्रोटेक्ट करने की तरह भी एक्ट करेगा। मतलब जितने भी डर्ट लेयर्स इस पे बैठेंगे ओरिजिनल पेंट पे, वो पहले पॉलिश पे बैठेंगे एंड ऑब्वियसली सब आता है कि फिर आपकी ओरिजिनल पेंट डैमेज नहीं होगी। सो ये ही वो रिम्स भी क्लीन है अच्छे से, और मैंने रिम्स पे भी पॉलिश लगाया है फॉर जस्ट गिविंग देम एक्स्ट्रा लुक। तो ऑल दी फ्रेंड्स, घर पे रहो आप सब, सेफ रहो एंड स्टे कनेक्टेड। लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अगर कुछ भी इसमें अच्छा लगा हो तो, और प्लीज़ डीएम अगर मैंने किसी भी तरह की कोई गलती की है या मैंने किसी भी तरह के कोई वर्ड ऐसे यूज़ किए हैं जो इनएप्रोप्रिएट हैं तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और गाइस प्लीज़ लाइक, मेहनत लगती है बनाने में, ये नहीं है कि बस मैंने बोल दिया इस पर एडिटिंग लगेगी बहुत देर की, ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स की, फिर मैं इसे पोस्ट करूँगा। सो पोस्ट आप ही लोग के लिए कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी फिर से इस वीडियो को वापस देखनी है। तो अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक। थैंक यू।